Hello, students. How are you? Hope you are staying safe at your home. So, welcome back after the first term examination. And in the first term examination, we have completed with the book number one, that is Introductory Macroeconomics. So, from today onwards, we will start with the second book, that is Indian Economic Development. So, Indian economic development is all about the Indian economy on the eve of independence and after the independence, how was the Indian economy? So, in today's lecture, we will start with the first chapter, that is Indian economy on the eve of independence. सो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का क्या मतलब है कि बिफोर इंडिपेंडेंस दैट हाउ द इंडियन इकोनॉमी वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द ब्रिटिशर्स. So in this chapter we will discuss about the colonial exploitation of the Indian economy under the British rule, features of Indian economy on the eve of independence, agriculture sector on the eve of independence, industrial sector on the eve of independence, foreign trade under the British rule, demographic profile during the British rule, occupational structure on the eve of independence, and infrastructure on the eve of independence. So first one is colonial exploitation of the Indian economy under the British rule. So Indian economy was under the British rule for more than 200 years and they have exploited the Indian economy a lot. So they have exploited our agriculture sector, they have exploited our industrial sector as well, they have exploited our international trade as well. So let's start with the colonial exploitation of agriculture sector. So at that time agriculture was the main source of the livelihood for the Indian people. So agriculture was exploited through zamindari system of the land revenue. So what was the zamindari system? A system of land revenue that worked through middleman called zamindars, an intermediary between the colonial government and the peasants. तो जमींदारी सिस्टम क्या था? एक मिडल मैन था बीच में between the government and the peasants. Peasants mean who are actually working on the land. So following observation highlight how this system led to exploitation of Indian agriculture. Zamindar were declared as the owner of the soil. They were to pay a fixed sum to the government by way of land revenue and free to extract as much they wished from the tillers of the soil. तो जमींदार्स थे जो जमींदार्स को we can say we have declared them owners of soil. तो owners of the soil जो जमींदार्स थे उनको क्या करना पड़ता था? गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू पे करना पड़ता था और जब गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू ज़्यादा मांगती थी तो दे डिमांड मोर रेवेन्यू, मोर मनी फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल हु आर द एक्चुअली वर्किंग ऑन द फील्ड. The tillers of the soil got bare minimum for survival. They were left with no surplus for investment in the agriculture. जब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ज़मींदार ले जाता था तो क्या होता था? जो टिलर्स ऑफ द सॉइल थे उनके पास क्या था? कुछ भी पैसा नहीं बचता जाता. हु आर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स, यानी कि जो एक्चुअल में लैंड पे काम कर रहे हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता था. दे वर लेफ्ट विद द मिनिमम बेयर फॉर देयर सर्वाइवल. The zamindari on the other hand spend the revenue income on the luxuries of the life. जो ज़्यादा से ज़्यादा जो जमींदार थे वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिमांड करते थे. किन से डिमांड करते थे? दैट इज़ फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल. तो जो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कहाँ पे स्पेंड करते थे? ऑन द लग्जरीज ऑफ देयर लाइफ. लिटिल और नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. जबकि लैंड उनकी थी, जबकि जो लैंड थी वो जमींदार की थी, तो जमींदार उसमें से क्या है? बहुत कम पैसा इन्वेस्ट करता था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ देयर एग्रीकल्चर लैंड. सो दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लॉयटेड द एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट, सेकेंड वन इज कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वॉज वेल नोन फॉर द हैंडीक्राफ्ट्स. जब ब्रिटिशर्स नहीं थे इंडिया में, मुगल एम्परर्स होते थे, तो उस टाइम क्या था कि जो हैंडीक्राफ्ट्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या होते थे? दैट वॉज famous all over the world.
So Indian handicrafts enjoyed a worldwide reputation for their variety and quality. But these were destroyed by the British government in the two ways. तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने क्या कर दिया, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको काफ़ी एक्सप्लॉइट कर दिया, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को काफ़ी एक्सप्लॉइट कर दिया. हाउ दे हैव एक्सप्लॉइटेड, फॉरेन डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ हैवी ड्यूटी ऑन देयर एक्सपोर्ट. कि अगर आप इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को क्या करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो हम उसके ऊपर क्या है बहुत ज़्यादा टैक्स लगाएंगे. जब टैक्स लगेगा तो अल्टीमेटली क्या है, वो उस चीज़ का प्राइस ज़्यादा होएगा और हाई प्राइस पे कोई भी उस चीज़ को नहीं खरीदेगा. डोमेस्टिक डिमांड फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट वॉज डिस्ट्रॉयड बाय वे ऑफ ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट. तो चलो बाहर तो उन्होंने डिमांड उसकी ख़त्म करी, बट इंडियन मार्केट में भी हैंडीक्राफ्ट्स की डिमांड उन्होंने कैसे ख़त्म करी कि बाहर से जो ब्रिटिश गुड्स आ रहे हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, और वही ब्रिटिश प्रोडक्ट जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे इंडियन मार्केट में क्या मिलते थे, सस्ते मिलते थे. और एक साइड हमारे पास सस्ता प्रोडक्ट पड़े, एक साइड हमारे पास महंगे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स पड़े, तो हम क्या है जो सस्ते मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदेंगे. तो बाय दिस they have exploited or they have destroyed our industrial sector which was famous for their handicrafts before the British rule. Colonial exploitation of international trade. तो India's international trade was exploited through discriminatory tariff policy. तो वो कहते हैं कि जो टैरिफ पॉलिसी थी, टैक्सेशन पॉलिसी थी इंटरनेशनल ट्रेड की, दैट वाज आल्सो वेरी डिस्क्रिमिनेटरी. डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभाव किया जाता था. ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द इंडस्ट्रियल नीड्स इन ब्रिटेन. तो जो ब्रिटेन में गुड्स बनती थी उसका जो रॉ मटेरियल था वो सारा इंडिया से एक्सपोर्ट होता था, और रॉ मटेरियल के ऊपर कोई भी जो टैक्स था, कोई भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी वो नहीं लगती थी. देन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स टू एक्सपैंड डिमांड फॉर द ब्रिटिश गुड्स इन द इंडियन मार्केट. यानी कि उन्होंने क्या करा, फिर जो ब्रिटिश गुड्स हैं, जो वहाँ यहाँ से जो रॉ मटेरियल जा रहा है और उस रॉ मटेरियल से जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहा है, तो उसकी क्या है जो डिमांड है इंक्रीज हो जाए इंडियन मार्केट में. तो उन्होंने क्या करा, उस चीज़ की जो वी कैन से दैट उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया, ताकि वो इंडियन मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स मिल सके. इट वॉज ओइंग टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी कि इंडियन रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा. वहीं अगर इंडियन इकोनॉमी से, इंडियन मार्केट से हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट होते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी. देन ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, यानी कि जो यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है और उनसे जो फिनिश प्रोडक्ट बन के आ रहे हैं उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ताकि वो इंडियन मार्केट में सस्ते मिल सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को कैन से दैट यूज़ कर सकें. Briefly owing to its colonial exploitation, the Indian economy became both stagnant as well as backward economy. तो ये तीन सिस्टम के कारण क्या है, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हुई और बहुत ज़्यादा we can say that stagnant हो गई. So in the next video session we will discuss about these features of Indian economy on the eve of independence. So if you have any of the queries, please note it down on your notebook and I will sort out in your tomorrow's Zoom session. Thanks and have a nice day.